Let's go. All right. So we will be doing current affairs today. Okay. And as I texted you guys, all right. So we will be covering the SEO meeting, that took place. All right. Then PM Japan visit. Also about the CEC, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. There is a lot of controversy going on with the SIR. All right. Special intensive revision and our Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar also. So we will be discussing that also. All right. And we will be discussing Evergrande. This was a real estate company in China. This has collapsed. And we will be discussing about Evergrande also. Then legible prescription. जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं मेडिसिन की, दैट इज अ दैट शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक होनी चाहिए. दैट इज योर फंडामेंटल राइट. ऑलराइट. एंड मैग्सेसे अवार्ड. ऑलराइट. So these are all the things that we will be discussing in today's lecture. All right. So you can zoom this also, Shaurya and other students, you can see this. You can zoom the screen also. ठीक है, अगर आपको और अच्छे से देखने इस चीज को. All right. So let's start with 25th SEO Summit 2025. So which edition took place recently? SEO का कौन सा edition अभी हुआ? 25th Summit. All right. So it's easier to remember. Easy है, देखो 2025 चल रहा है and this is the 25th SEO Summit. So it's easier to remember. All right. So SEO Summit मैंने आपको पहले भी कराया था स्टूडेंट्स. SEO Summit जब डिफेंस मिनिस्टर का SEO Summit हुआ था, it was held in Qingdao, China. And there our defense minister Mr. Rajnath Singh, he refused to sign a joint statement. All right. हमने उस टाइम किया था ये सब SEO के बारे में. जॉइंट स्टेटमेंट उस टाइम साइन नहीं की थी मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, बिकॉज देर वॉज नो मेंशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई थी उसमें उसका मेंशन था, जो ड्राफ्ट था जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, बट कोई मेंशन नहीं था पहलगाम टेरर अटैक का. ऑलराइट. जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही वेंट टू किंगडाओ, चाइना. ऑलराइट. सो अब कौन सी मीटिंग हुई है? 25th एससीओ समिट, हेड्स ऑफ स्टेट. ऑलराइट. हेड्स ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन है? पीएम मोदी. ऐसे ही हेड ऑफ स्टेट रशिया का कौन है? रशिया का हेड ऑफ स्टेट व्लादिमीर पुतिन. ऑलराइट. चाइना का हेड ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली चाइना वाज होल्डिंग दिस समिट, सो चाइना के जो प्रेसिडेंट है ही वाज प्रेजेंट देयर. ऑलराइट. पाकिस्तान से भी गए हुए थे वहां पे. ऑलराइट. पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वाज आल्सो देयर. सो लेट्स रीड अबाउट दिस 25th SCO Summit 2025. So Prime Minister Narendra Modi, he attended the 25th SCO Summit in Tianjin, China. पहली जो SCO Summit हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह गए थे, it was in Qingdao, China. ठीक है. And so SCO Summit, it is being conducted by China this year. So 25th SCO Summit जो हेड ऑफ स्टेट का हुआ है, it is held in Tianjin, China. Where discussion focused on global governance reform, counterterrorism, peace and security, economic cooperation, and sustainable development. All right. So आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एससीओ के बारे में जो आपको मैंने कराया था वो सब आपको याद भी है नहीं है. All right. So SCO is a regional powerhouse that emerged from Shanghai 5. SCO का आज के टाइम में नाम SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले इसका नाम था शंघाई 5. It was started in 1996. So Shanghai 5, it was started in 1996. SCO का नाम पहले Shanghai 5 था. And it consisted of 5 countries: China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. ठीक है. ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पे. There were 5 countries in the starting 1996 में जब Shanghai 5 था. Then Shanghai 5 SCO कब बना? With the accession of, accession means जुड़ने के बाद,
उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद विद द एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू द ग्रुप इन 2001 द शंघाई 5 वाज रीनेम्ड द SCO. All right, and also we did what is the objective, mainly to counter terrorism, to enhance regional cooperation for efforts to curb terrorism, separatism and extremism in the Central Asian region. This is the objective. Members कौन कौन है आज के टाइम में इसके? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस एंड द 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. All right, India became a full member in 2017 and assumed the rotating chairmanship in 2023. All right, so language आपको ध्यान में रखनी है, SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? रशियन एंड चाइनीज, मैंड्रिन भी बोलते हैं चाइनीज को. ऑल राइट, सो रशियन एंड मैंड्रिन. सो इसमें आप देखोगे कि SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नोट मैप, भाई होल्ड टैप तो एक ही होगी एक टाइम पे फिर All right, so first let us know about the SCO, Shanghai Cooperation Organization. मैंने आपको बताया इसमें शंघाई 5 से ओरिजिनेट हुआ था. ये शंघाई 5 mechanism in 1996 was there. Shanghai 5 emerged from 1996 from a series of border demarcation from demilitarization talks between 4 former USSR republics and China. So Shanghai 5 was there 1996 में, इसका नाम था Shanghai 5. With the accession of Uzbekistan in 2001 it became SCO. So SCO कब फॉर्म हुआ? We can say 2001. All right, objective to enhance regional cooperation for efforts to curb terrorism, separatism and extremism in the Central Asian region. So देखो बेसिकली टेररिज्म को कर्ब करने के लिए SCO बना है, एंड पहलगाम टेरर अटैक का इसमें मेंशन नहीं था जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स वहां पे गए, वहां पे राजनाथ सिंह. ऑलराइट, इंडिया कब मेंबर बना इसका? इंडिया बिकेम अ फुल मेंबर इन 2017 एंड अज्यूम्ड द रोटेटिंग चेयरमैनशिप इन 2023. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें पाकिस्तान भी इसका मेंबर है. ठीक है, जो अभी कल मीटिंग हुई इसकी SCO की जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही वाज आल्सो प्रेजेंट. ऑलराइट, सो जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशियन एंड चाइनीज, रशियन एंड मैंड्रिन. इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ऑप्शन आएगा क्लैट में, सो इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ओनली रशियन एंड मैंड्रिन. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक SCO. ठीक है, SCO क्या है, कब वो फॉर्म हुआ था. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू द 25th SCO समिट 2025. ठीक है, सो एस्टेब्लिश्ड इन 2001. इससे पहले मैंने आपको बताया 1996 में इट वाज शंघाई 5. 2001 में बाय फाउंडिंग मेंबर्स चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. द SCO now has 10 member states, 2 observer states and 15 dialogue partners from Asia, Europe, Africa. Laos was granted the partner status during 2025 summit. So partner states भी हैं इसमें, एंड अभी पार्टनर स्टेटस किसको मिला रिसेंटली 2025 में? लाओस को. ऑलराइट, सो 2017 जब अस्ताना में हुआ था SCO मीटिंग इन 2017 एंड अस्ताना, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंड SCO एज फुल मेंबर्स. ऑलराइट, नाउ द स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशंस एंड रेजोल्यूशंस. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि SCO मीटिंग अगर हुई है इस बार, सो उसमें क्या डिक्लेरेशंस हुए, क्या रेजोल्यूशंस हुए. पहलगाम टेरर अटैक का जब डिफेंस मिनिस्टर हमारे वहां पे गए थे किंगडाओ चाइना में, तब मेंशन नहीं था, बट इस बार जो तिएंजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसमें पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन है. सो दिस इज अ बिग विन फॉर इंडिया. ऑलराइट,
Tianjin Declaration adopted as the central political outcome. A development strategy for 2026 to 2035 was approved, outlining long-term priorities and direction for the SCO's growth in the next decade. Cooperation program to counter extremist ideology within SCO space. All right. So SCO granted observer status within the Commonwealth of Independent States. SCO को भी क्या मिला, एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया SCO को विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ऑलराइट. सो नेक्स्ट थिंग जो इसमें एक इंडिया के लिए अच्छी चीज हुई है, तिएनजिन डिक्लेरेशन, पहलगाम अटैक मेंशन. पहलगाम अटैक को इसमें मेंशन किया गया है. द डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली condemned the April 2025 Pahalgam terror attack in India, which killed 26 people. पहले जब हुआ था किंगडाओ में there was no mention, इस बार मेंशन इन्होंने कर दिया है. Condolences were expressed to victims' families with a call to bring perpetrators and sponsors to justice. All right. So जो पहले जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, जफार एक्सप्रेस हाईजैकिंग की उसमें बात हुई थी, अगेन इट वाज आल्सो मेंशन्ड, and Khusdar school bus bombing in Pakistan, that was also mentioned. ठीक है. But for India, Pahalgam terror attack was mentioned. All right. So defense ministers की मीटिंग हुई थी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. At the SCO defense ministers meeting in Qingdao, June 2025, Pahalgam was omitted from the draft statement due to Pakistan's opposition. So उस टाइम पाकिस्तान की ज्यादा सुनी जा रही थी. All right. India's Defense Minister Rajnath Singh refused to sign the statement then, insisting terrorism concerns must be included. 3 months later, the Leaders Summit corrected this omission. So, the Leaders ki summit hui, they have corrected this omission, explicitly mentioning Pahalgam and cross-border terrorism. The declaration states, the member states strongly condemn the terrorist attack in Pahalgam on 22nd April. So, this was the declaration. All right. So changing India's China dynamics. अभी तक तो आपको पता ही होगा कि there are lot of tariffs that have been imposed by the US on India. ठीक है. So US ने जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, चाइना के ऊपर भी लगाए थे, बट चाइना एक बिगर इकोनॉमी है, सो चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ा. बट यस, इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ्स लगाए गए हैं, उसको देखते हुए इंडिया एंड चाइना के जो डायनेमिक्स हैं ट्रेड को लेकर, वो चेंज हो सकते हैं. ऑलराइट. And also Pahalgam terror attack was mentioned. So this is a good sign with our neighboring country, China. All right. So देखो, relations between India and China showed sign of thaw with PM Modi's first China visit in 7 years to meet President Xi Jinping. So 7 साल बाद Prime Minister Modi he went to China. Last time Prime Minister Modi and जो Xi Jinping है वो कहाँ पे मिले थे? ब्रिक्स समिट 2024 जो हुआ था, उसमें जो क्लैट में क्वेश्चन भी आया था कि क्लैट में देयर वाज अ क्वेश्चन कि देयर वाज टॉक्स ऑन डी एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ऑलराइट. सो लास्ट टाइम ये मिले थे ब्रिक्स मीटिंग में कजान, रशिया में. चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है सॉरी, उन्होंने मेंशन भी किया कि लास्ट टाइम वी मेट इन कजान, रशिया, ड्यूरिंग दैट ब्रिक्स 2024 मीटिंग. सो लास्ट कजान में मिले थे, बट एक प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने साल बाद गए चाइना में? आफ्टर 7 years. ऑलराइट. द तिएनजिन डिक्लेरेशन इज सीन एज अ सिग्नल ऑफ Beijing's willingness to strengthen ties with New Delhi amid US tariff pressures. ऑलराइट. सो प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूएस से हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो काफी बार बोल चुके हैं कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने का. इट वाज अ न्यूक्लियर, दे वांटेड टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर, बट मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, है ना. उन्होंने काफी बार मेंशन कर चुके हैं कि मैंने वो रुकवाया है. ठीक है. अभी वो ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया चाइना दोस्त बन रहे हैं, तो ये भी मेरी वजह से हो रहा है, टैरिफ मैंने लगाए, इसलिए इंडिया चाइना भी दोस्त बन रहे हैं, इसलिए भी मुझे नोबेल प्राइज दो. ठीक है. सो पीएम मोदी ने भी वहां पे स्पीच दी. ऑलराइट. पीएम मोदी की स्पीच, इट वाज डाइवर्सिफाइड विद कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, एआई के बारे में उन्होंने बात की. ऑलराइट. सो इन हिज एड्रेस पीएम मोदी आउटलाइंड इंडियाज एससीओ विजन अंडर 3 pillars: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी. सो एससीओ जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
पीएम मोदी ने उसको दूसरा नाम दिया, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी. He stressed that peace and stability are essential for prosperity and called for firm, coordinated action against terrorism, radicalization, and terror financing. While rejecting double standards, he thanked member states for their solidarity after the Pahalgam terror attack and urged accountability for countries supporting cross-border terrorism. So, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ही वाज प्रेजेंट देयर, उनके सामने ही उन्होंने इतनी बातें बोली हैं. सो दिस इज अ गुड थिंग. ऑलराइट, so this was about the SCO meeting, 25th SCO meeting 2025. All right. Now, next news. Justice Vipul Pancholi's controversy and the collegium system. All right. So अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 new judges have been added. 2 नए सुप्रीम कोर्ट जजेस बने हैं. All right. There is a controversy regarding Vipul Pancholi. ठीक है, क्या वो कंट्रोवर्सी है, and what is the collegium system, we will understand. So there is a raging controversy over the out-of-turn elevation of Justice Vipul Pancholi, who faced a strong dissent note from Justice B.V. Nagaratna. B.V. Nagaratna, she is the only women judge in Supreme Court right now, and she will be the first women Chief Justice of India in 2027, B.V. Nagaratna. उन्होंने काफी इसकी ओपोजिशन की कि विपुल पंचोली की आप सुप्रीम कोर्ट जज क्यों बना रहे हो. ऑलराइट, व्हाई? देखो, we will move on to that also. So 2 new Supreme Court judges have been selected, both Alok Aradhe and Justice Vipul Pancholi. Sworn in and judges of the Supreme Court. The oath of office was administered by the Chief Justice of India, B.R. Gavai. So इनको oath किसने दिलाई? B.R. Gavai ने. This is important for you. सुप्रीम कोर्ट जजेस को ओथ कौन दिलाता है? जो सीजीआई है वहां के. ऑलराइट, सो प्रेजेंट सीजीआई इज B.R. गवई. इन्होंने ओथ दिलाई दोनों जजेस को. बट B.R. गवई को ओथ किसने दिलाई थी? प्रेसिडेंट ने. ऑलराइट, सो आपको याद रखना कि सीजीआई को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओथ कौन दिलाता है? आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑलराइट, B.R. गवई. So Justice Pancholi, whose supersession of several senior judges had triggered debate on functioning of the collegium system, is in line to become the Chief Justice of India from October 3, 2031 to May 7, 2033. With the swearing in of both judges, the Supreme Court will now function with its full sanctioned strength of 34 judges. So full एक strength कितनी है सुप्रीम कोर्ट की? 34 जजेस. अभी तक 32 थे. अभी 2 नए जजेस आ चुके हैं, आलोक अराधे एंड जस्टिस पंचोली. सो स्ट्रेंथ अब कितनी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की? 34 जजेस आर देयर. ऑलराइट, सो बिफोर द एलिवेशन, जस्टिस आराधे वाज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. आराधे कहां से आए हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट से. व्हाइल जस्टिस पंचोली वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट. जस्टिस पंचोली, he was the chief justice of Patna High Court. Alright, the collegium headed by Chief Justice Gavai had on August 25 recommended their names. Justice Nagaratna, however, recorded her dissent. Dissent means opposition. ठीक है, अगर एक होता है फेवर करना, ऑलराइट, कि ओके आई एम विद दिस अपॉइंटमेंट, हम इस जो अपॉइंटमेंट हुई है इसके फेवर में है, एंड जो फेवर में नहीं होता दैट इज नोन एज डिसेंट. ऑलराइट, over Justice Pancholi's appointment, noting that he ranked 57th in the seniority list of High Court judges. So Nagaratna, Justice Nagaratna का क्या बोलना था कि 57th नंबर है इनका सीनियोरिटी लिस्ट में ऑफ हाई कोर्ट जजेस. आप इनको प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? ठीक है, जब 57 अदर जजेस हैं इनसे सीनियर. एंड व्हाट एल्स शी वाज सेइंग कि 4 वुमेन जजेस भी हैं इन लाइन जो कि इनसे सीनियर हैं. एंड इस टाइम सिर्फ मैं प्रेजेंट हूं सुप्रीम कोर्ट में, एक वुमेन जज. आप वुमेन जजेस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो जब इनसे सीनियर एक वुमेन जजेस प्रेजेंट हैं? ही वाज 57th इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. ऑलराइट, सो इनको कॉलेजियम ने एक सिलेक्ट कर लिया. सो दिस वाज क्वेश्चनेबल. ऑलराइट, एंड दिस वाज द कंट्रोवर्सी कि 57 जजेस जब लाइन में थे, जस्टिस पांचोली को क्यों सिलेक्ट किया? So reportedly, Justice Nagaratna, the only woman judge currently in the Supreme Court, cautioned that the appointment would not only be counterproductive,
to the administration of justice, but also risk the credibility of the collegium itself. So collegium पे भी questions उठेंगे. This was said by B.V. Nagaratna. All right. So she also named women judges also. कि चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट हैं सुनीता अग्रवाल. शी इज अ वुमेन, शी शुड बी एलिवेटेड. वो इनसे सीनियर भी हैं. रेवाती मोहिते डेरे ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, Justice Leela Gill of Punjab and Haryana High Court were overlooked in favor of Justice Pancholi. So favorism was there. Collegium पे questions उठते रहते हैं कि yes, favorism is there. ठीक है? So now let's talk about the collegium system. ये collegium system है क्या? All right. The Supreme Court Collegium is headed by the CJI, Chief Justice of India, and comprises 4 other senior most judges of the court. So Supreme Court के CJI उनको हेड करते हैं, ऑलराइट, एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट. दिस फॉर्म द कोलिजियम. कोलिजियम के अभी मेंबर बीवी नागरत्ना भी थे. उन्होंने डिसेंड किया कि पांचोली की जगह 57 जो अदर जजेस हैं, वुमेन जजेस भी हैं, उनको आप इलेक्ट करो. ठीक है. सो कोलिजियम सिस्टम बनता है सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द कोलिजियम. ऑलराइट. हाई कोर्ट का कोलिजियम क्या होता है? हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय द इनक्यूमेंट चीफ जस्टिस and 2 other senior most judges of that court. Chief Justice of that particular High Court and 2 other senior most judges of the court. All right. This is the High Court Collegium. अब इसमें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में चीफ जस्टिस हैं एंड अदर सीनियर मोस्ट जजेस हैं, बट गवर्नमेंट का कोई पर्सन नहीं है इसमें. ऐसे नहीं है कि आप बीजेपी से पूछ के अपॉइंटमेंट करोगे या फिर ओपोजिशन से पूछ के आप अपॉइंटमेंट करोगे, राहुल गांधी या फिर ओपोजिशन मेंबर्स हैं उनसे पूछ के आप अपॉइंटमेंट करोगे. नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है. It is headed by the Chief Justice and 4 other Supreme Court judges. So इसमें biasness के क्वेश्चंस रहते हैं, बट yes, एग्जीक्यूटिव को अगर हम ऑप्शन देंगे कि एग्जीक्यूटिव भी इसमें इंटरफेरेंस कर सके, सो दैट वुड मीन कि पॉलिटिकल से तब तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे. ठीक है. अभी तो फिर भी एक चीफ जस्टिस आगे चलो पांचोली, बट एग्जीक्यूटिव को अगर हम पावर दे देंगे ये सब, दैट वुड मीन कि फेवरिज्म तब बहुत ज्यादा हो जाएगा. ऑलराइट. So judges of higher judiciary are appointed only through the collegium system, and the government has a role only after names have been decided by the collegium. गवर्नमेंट का रोल कब आता है कि हमने नाम डिसाइड कर लिए हैं, कोलिजियम ने नाम डिसाइड कर चुका है कोलिजियम, एंड देन गवर्नमेंट्स रोल comes into play. Right. Now procedure for judicial appointment. Judicial appointment होती कैसे है? CGI we have discussed in earlier classes also. CGI कैसे बनते हैं? नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि सीजीआई कैसे बनेंगे. ऑलराइट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बना जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज कि देयर शैल बी अ सीजीआई ऑफ इंडिया. ऑलराइट. वहां पे कोई एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर नहीं दिया हुआ. ठीक है. बट एक कन्वेंशन बनी हुई है कि सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर मोस्ट ऐसे एज से नहीं देखा जाएगा. सीनियर मोस्ट कैसे देखा जाएगा कि जिसको सबसे ज्यादा एक टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए. ऑलराइट. एक्सपीरियंस जिसके पास ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट में, ही इज द सीनियर मोस्ट. ऑलराइट. एज के हिसाब से हम नहीं देखते सीनियर मोस्ट. सो सीजीआई के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सीजीआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, सिर्फ अपॉइंट, बट इलेक्ट कौन करता है? जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज डन बाय द कोलिजियम. प्रेसिडेंट का सिर्फ रोल इतना है कि ही अपॉइंट्स. सीजीआई को ओथ दिलाने आ जाएगा, एंड जो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट करता है सिर्फ प्रेसिडेंट. ऑलराइट. As far as the CGI is concerned, the outgoing CGI recommends his successor. All right. So our 51st CGI, Sanjeev Khanna, he recommended CGI जो BR गवई थे उनको CGI recommend किसने किया था? संजीव खन्ना ने. All right. In practice, it has been strictly by seniority ever since the supersession controversy of the 1970s. So 1970s में there was a controversy. Out of turn किसी को CGI बना दिया गया था. All right. So 1970s से there is this convention कि जो भी senior most judge होगा उसी को बनाएंगे हम CGI. Alright. Now for Supreme Court judges, for other judges of the Supreme Court, the proposal is initiated by the CGI. ठीक है. जो बाकी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनको कैसे इलेक्ट करना है, the proposal is initiated by the CGI. The CGI consults the rest of the collegium. As I told you, CGI होंगे collegium में and 4 other Supreme Court judges होंगे. So CGI consults the rest of the collegium members as well as the senior most judge of the court
hailing from the high court to which the recommended person belongs. So इसमें देखो किस किस की बात हुई. CJI consults the rest of the collegium members, CJI plus 4 other Supreme Court judges, as well as अभी हाई कोर्ट से बुला रहे हैं ना, देखो, as well as the senior most judge of the court hailing from the high court to which the recommended person belongs. वहां के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वह उनसे भी डिस्कशन करेगा. ऑलराइट. बट कोलिजियम किसका हुआ? कोलिजियम मींस सीजीआई एंड 4 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. एंड ये जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट की बात हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ एक इनसे जो है इनसे रिकमेंडेशन लेगा. ये कोलिजियम के मेंबर नहीं होते. ऑलराइट. द कंसल्टेज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियन इन राइटिंग्स एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइल. सो इफ बीवी नागरत्ना हैज डिसेंट किया अगर उन्होंने बाय द सिलेक्शन ऑफ पंचोली, सो वो सब लिखा जाएगा. ऑलराइट. हर ओपिनियन विल आल्सो बी रिटन. The collegium sends the recommendation to the law ministers who forwards it to the prime ministers to advise the president. President कैसे एक्ट करता है? On the aided advice of council of ministers. ठीक है. So law minister के पहले पास जाएगी फाइल and then it will be sent to the prime minister who will advise the president. And president appoint कर देगा supreme court judge को. Alright. For chief justice of high courts. High courts के लिए क्या procedure है? The Chief Justice of High Court is appointed as per the policy of having Chief Justices from outside the respective states. इसमें भी कोलिजियम सिस्टम है हाई कोर्ट में. सिर्फ जो लोअर जुडिशरी है, योर सिविल जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, दे आर सिलेक्टेड थ्रू प्रमोशंस या फिर एग्जाम्स हैं उनके. बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ओनली कोलिजियम सिस्टम वर्क्स. ठीक है. सो हाई कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम कैसा है? हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय कोलिजियम कंप्राइजिंग द CJI, Chief Justice of India, and 2 senior most judges. All right. So this was about the collegium system. All right. But yes, High Court में एक डिफरेंस क्या है यूनियन से लेके जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक डिफरेंस जो मेन है वो ये है कि रिकमेंडेशन इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर. वहां पर रिकमेंडेशन किसको जा रही है? लॉ मिनिस्टर को. ही फॉरवर्ड्स इट टू प्राइम मिनिस्टर एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट. बट हाई कोर्ट के इन हाई कोर्ट्स केस ये कहां पे जा रही है रिकमेंडेशन? तो चीफ मिनिस्टर who advises the governor to send the proposal to the union law minister. Alright, so पहले चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी यहाँ पे. ठीक है. So this was about the collegium system and the recent controversy on Justice Vipul Pancholi. जो विपुल पंचोली है, बीवी नागरत्ना, she is the part of collegium system and she is the only women judge in Supreme Court now, right now. She will be the first Chief Justice of India in 2027. She dissented from this appointment. ठीक है. अपॉइंटमेंट के वो अगेंस्ट थी. ऑलराइट. सो इसमें आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें रोल नहीं है. जो भी एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें कोलिजियम सिस्टम में, ऑल द वर्क इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस और द हाई कोर्ट जजेस ओनली. इसमें कोई भी रोल एग्जीक्यूटिव का नहीं है. ऑलराइट. ओके. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. Ganesh Kumar, he recently gave some controversial remarks. Controversial नहीं थे but controversy gain हो गई because बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, as you all know. So बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं. ज्ञानेश कुमार ने कुछ controversial बातें ऐसी बोली कि CCTVs क्यों दे हम ओपोजिशन मेंबर्स को. ऑलराइट. आपकी बहन बेटियां वोट डालने आ रही हैं, हम उसकी जो एक CCTV रिकॉर्डिंग है हम उसको ओपोजिशन मेंबर्स को क्यों दे. सो दैट वाज कंट्रोवर्शियल. उसमें देने में दिक्कत क्या है? वोट ही डालने आई है वो. ऑलराइट. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड SIR प्रोसेस इज आल्सो गोइंग ऑन. बिहार में SIR प्रोसेस चल रहा है. वी हैव डन इट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. सो ज्ञानेश कुमार एक मीडिया में आए, उन्होंने इतने सारे बयान दिए. सो दिस पोस्ट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, हाउ ही इज इलेक्टेड. ठीक है. सो लेट्स टेक अ लुक. श्री ज्ञानेश कुमार took charge as the 26th है Chief Election Commission of India on 19th February 2025. ठीक है. इसी साल इलेक्ट हुए हैं 19th फरवरी को. He is a 1988 बैच केरला कैडर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. IAS थे पहले, 1988 में सिलेक्ट हुए थे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द IIT कानपुर, IIT से पढ़े हुए हैं. ही इज एन इंटेलिजेंट गाय.
He has also studied business finance from ICFI, India and Environmental Economics from HIAD, Harvard University USA. So Harvard से भी पढ़ के आए हुए हैं, alright? He has worked in the government of Kerala as sub-collector of Adur, MD of Kerala State Development Corporation for SC/ST, Municipal Commissioner of Corporation of Cochin, MD of Kerala State Cooperative Bank, DC of Ernakulam, State Secretary of Goshri Islands Development Authority, MD of Tiruvandrum Airport Development Society, and Resident Commissioner of Kerala House in New Delhi. So इतना सब कुछ याद नहीं करना है आपको कि कहाँ पे कलेक्टर थे, कहाँ पे इनका क्या रोल था, इतना सब कुछ याद नहीं करना है. What is important is that he is the 26th Chief Election Commissioner of India. All right. इसी साल he was elected. In the government of India, he has rich experience of working as Joint Secretary in the Ministry of Defence. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने काम किया है. He has rich experience of working as Joint Secretary in the Ministry of Defence, Joint Secretary and Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs, Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, and Secretary in the Ministry of Cooperation. After superannuation on 31st January 2024, he was appointed Election Commissioner in the Election Commission of India on 15th of March 2024. So पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले क्या थे? इलेक्शन कमिश्नर. ऑलराइट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे इन द इलेक्शन कमीशन. ऑलराइट, नाउ द इलेक्शन कमीशन एक्ट, इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे इलेक्ट होंगे, इट वाज चेंज्ड इन 2023. 2023 में एक नया एक्ट आया था, 2023 इलेक्शन कमीशन एक्ट. उसमें नए रूल्स थे कि कैसे इलेक्ट होंगे, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, ऑलराइट, कैसे इलेक्ट होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, सो 2023 में देयर वाज अ चेंज. ऑलराइट, सो लेट्स रीड अबाउट द चेंज आल्सो. इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशंस. सेक्रेटरी लेवल पोजीशन. So this is a secretary level position, must have held post equivalent to the secretary to the government of India. So पहली requirement qualification क्या है? Must have held post equivalent to the secretary to the government of India. Must possess expertise in the managing and conducting elections. So elections में भी उनका कुछ role होना चाहिए, expertise होना चाहिए elections conduct करने में. Now there is a search committee. इनको ढूंढ के कौन लाएगा? It is headed by the Minister of Law and Justice. Composition: 2 members, secretary and co-hire, prepares panel of 5 candidates. So 5 candidates का एक नाम select होते हैं, panel select होता है उसमें. Alright. Select committee में कौन-कौन है? जो 5 candidates जो select हुए हैं, 5 candidates में से select कैसे होंगे? Committee members उसमें कौन-कौन है? Prime Minister, he is the chairperson. Leader of opposition, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी कौन है? राहुल गांधी. ही विल बी प्रेजेंट. यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम. ऑलराइट, दे रिकमेंड द कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट. ये सब लोग मिलके क्या करते हैं? जो भी कैंडिडेट होगा उसको रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को. रेजिग्नेशन किस किस को दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर? इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. सो रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को. रिमूवल कंडीशन सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज, सो इनको हटाना भी इजी नहीं है. ECs रिक्वायर CEC रिकमेंडेशन, सो इनको भी हटाना इजी नहीं है. ऐसे अगर सिंपली इनको हटा देंगे सो ये अपने फंक्शंस कैसे प्रॉपरली करेंगे? गवर्नमेंट के दबाव में रहेंगे. सो इनको भी हटाना इतना इजी नहीं है. इनको इम्पीच करना इट इज सेम एज रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जज. ऑलराइट, टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए रहते हैं CEC और EC? 6 years, 6 साल के लिए रहेगी इनकी ये जॉब. 6 years or until 65 years of age. So suppose ज्ञानेश कुमार अगर अभी 63 years 64 years के हैं, so जैसे वो 65 years के होंगे, 6 साल उनके कंप्लीट हों या ना हो, he will be retired. ठीक है, so 6 साल या फिर 65 years of age, whichever earlier. Alright, terms and conditions: if an EC becomes the CEC, combined tenure cannot exceed 6 years. So ये तो हो चुका है अभी. देखो, Ganesh Kumar, he was an EC, he has now become the CEC.
जो उनकी कंबाइंड टेन्योर होगी वो 6 साल से ज्यादा नहीं होगी। ऑलराइट, सो अबाउट द सीईसी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सीईसी के ये जो सॉरी जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9 में इसका मेंशन है। पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आपको आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, ऑलराइट। बट आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है वो क्या है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25। नेशनल वोटर्स डे कब है, जनवरी 25। सो 26 को क्या है, रिपब्लिक डे, उससे एक दिन पहले क्या आता है, नेशनल वोटर्स डे। ये आपको याद रखना है, ऑलराइट। दिस क्लैट कैन आस्क यू since 2011 to mark ECI's foundation. All right. Since 1993, it has one CEC and two election commissioners. So 1993 से there is one CEC and two election commissioners. ठीक है। It ensures free and fair elections for लोक सभा and राज्य सभा। सो इलेक्शन कमीशन ही देखो कराती है इनकी इलेक्शंस भी। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस आपसे पूछा जाए जो कौन कंडक्ट कराती है, इलेक्शन कमीशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज उनके इलेक्शन भी कौन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन। सो अभी जो जगदीप धनखड़ जो रिटायर हुए हैं, नेक्स्ट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, ठीक है, उनको कौन इलेक्ट करेगा, जो एक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा वो कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन। ऑलराइट। सो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये इलेक्शन कौन होल्ड करता है, कौन हेल्ड करवाता है, इलेक्शन कमीशन। ऑलराइट। सो जो 2023 में जो नया एक्ट आया, पुराने एक्ट को उसने रिपील कर दिया। उस एक्ट में कई क्या नई बातें थी, सीईसी एंड ईसीज इंजॉय सुप्रीम कोर्ट जज लेवल सैलरी एंड बेनिफिट्स। सो पहले तो उनकी सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्विवेलेंट कर दी। राइट, जो भी बेनिफिट्स एक सुप्रीम कोर्ट जज को मिलते हैं वही बेनिफिट अब किसको मिलेंगे, सीईसी को एंड इलेक्शन कमिश्नर को। ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। जो उनके ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी उनके ऊपर कोई सिविल केस डाल सकते हैं, क्रिमिनल केस डाल सकते हैं। जो भी उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। राइट। सर्च एंड सिलेक्शन कमिटीज फॉर अपॉइंटमेंट्स। सर्च कमिटीज मैंने आपको कराया जैसे ऊपर। सो सर्च कमिटीज दिस इज देयर एंड सिलेक्ट कमिटीज ये बनाई गई इन 2023 एक्ट। एंड फिक्स टेन्योर फॉर सीईसीज एंड ईसीज, 6 साल का जो एक फिक्स टेन्योर का कर दिया, या फिर 6 years या फिर 65 years, दिस वाज आल्सो फिक्स्ड इन द 2023 एक्ट। ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ऑलराइट, क्या उनकी रिटायरमेंट एज है, हाउ ही इज इलेक्टेड एंड हाउ ही कैन बी रिमूव्ड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज, legible prescription a fundamental right। legible prescription is now a fundamental right। legible prescription है क्या, देखो डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, डॉक्टर्स आपको कुछ भी लिख के दे देते हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता कि दवाई का नाम है या फिर कुछ लिखा भी है नहीं लिखा इन्होंने, है ना। कोई भी इसको नॉर्मल एक इंसान जो है उसको पढ़ ही नहीं पाता उस चीज को, दैट व्हाट द डॉक्टर हैज रिटन। बट आज जैसे ही आप केमिस्ट को दिखाते हो, केमिस्ट उसको पढ़ लेता है कि यस दिस इज दिस मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर सिर्फ एक लाइन मार देते हैं, पता नहीं केमिस्ट उस चीज को कैसे समझते हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ केस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में देयर वाज अ रेप केस, आप यहाँ देख सकते हो, देयर वाज अ रेप केस गोइंग ऑन इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अभी उसमें उस केस में देयर वाज अ स्लिप दैट वाज प्रेजेंटेड टू द हाई कोर्ट। एक स्लिप थी दैट वाज प्रेजेंटेड टू द हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट ने जब उसको स्लिप को देखा, जो एक डॉक्टर की रिटर्न एक प्रिस्क्रिप्शन थी, उसमें अ सिंगल वर्ड, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड वाज रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल। एक सिंगल वर्ड उसमें ऐसे पढ़ने लायक नहीं था। सो हाई कोर्ट के जजेस ने क्या बोला कि ये जो चीज है, आप इतनी एडवांस्ड हो चुकी है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स आर देयर,
ठीक है, कंप्यूटर्स में आप लिख के दो, एक टाइप करके दो कि दिस मेडिसिन आई एम प्रिस्क्राइबिंग। आप लोगों को क्यों नहीं बता रहे हो कि कौन सी दवाई आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो? ठीक है, सो एक रेप केस चल रहा था, बट उसके साथ साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है साथ में, दैट लेजिबल प्रिस्क्रिप्शन, एक पढ़ने लायक प्रिस्क्रिप्शन इज अ फंडामेंटल राइट। दिस इज व्हाट द पंजाब एंड हाई कोर्ट हैज रिसेंटली said. All right, so let's read it. The Punjab and Haryana High Court has ruled that legible medical prescription and diagnosis is an integral part of the right to health and is thus a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. So Article 21 में right to life and liberty की बात करता है Article 21. So पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि legible prescription is now a fundamental right under Article 21. All right. So August 27 को जजमेंट आई है. The August 27 judgment came on an anticipatory bail plea of an accused in an alleged rape case reported in Haryana on the pretext of providing job. When the medical legal record was summoned, जो एक रिकॉर्ड मंगाया गया, medical legal record, the court found that not even a word or letter was legible. एक लेटर उसमें पढ़ने लायक नहीं था, सिंगल वर्ड उसमें पढ़ने लायक नहीं था. Alright? So while issuing a slew of direction to the center, Punjab, Haryana and Chandigarh administration, the single judge bench of Justice J.S. Puri has said that it is very surprising and shocking that in this era of technology, देखो आप कोर्ट के भी, अब तो कोर्ट का भी काम सब ऑनलाइन हो गया है. ठीक है, कोर्ट का सब काम ऑनलाइन है. आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन देख सकते हो, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप ऑनलाइन देख सकते हो घर बैठे बैठे. बट डॉक्टर्स अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी लिख के दे देते हैं आपको जो आप रीड ही नहीं कर पाते हो. ठीक है, जो उसका केमिस्ट, एक प्रॉपर उनका केमिस्ट होगा वो रीड कर पाएगा, बाकी कोई उसको रीड ही नहीं कर पाता है. ठीक है, it is very surprising and shocking that in this era of technology and accessibility of computers, the notes on the medical history and on the prescription by the doctors are still written by hand and can't be read by anybody except some doctors. So this is what the High Court has said. The court in 2024 had initiated suo motu proceedings while taking a prima facie view that the right to have knowledge about medical prescription issued by doctor can also be considered as a fundamental right and had sought responses on the issue from the center, Punjab, Haryana and Chandigarh. So 2024 में this started and 2025 में August 27 को it was declared as a fundamental right. All right. Now the court, it has given instructions to Haryana, Punjab also, Chandigarh also कि सब डॉक्टर्स को आप टाइम लो एंड सबको बोलो कि ऑनलाइन ये सब सिस्टम करें. ऑलराइट, दिस वाज द डायरेक्शन गिवन बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट टू ऑल द सिविल सर्जन्स टू एंश्योर दैट द डॉक्टर्स अंडर देयर जुरिसडिक्शन, जो भी जुरिसडिक्शन में है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इंप्लीमेंट these instructions in letter and spirit. कि ग्राउंड में इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यस डायरेक्शंस मान लिए हमने, ऐसा नहीं. इन लेटर एंड इन स्पिरिट. ऑलराइट, Punjab had also issued similar instructions on May 28. The center had told court that it is also considering the issue with regard to minimum standards of facilities and services by considering issuing of necessary guidelines. So अभी सेंटर भी गाइडलाइंस इशू करेगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ऑल्सो दे विल ऑल इशू गाइडलाइंस कि जो भी आप प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हो दे शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक हो. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो इलेजिबल हैंडराइटिंग है उससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम देखो सिंपल है, जज उसको पढ़ नहीं पाए, जो भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट थी उसको पढ़ ही नहीं पाए जजेस, तो अपना डिसीजन कैसे दे प्रॉपर? एक देखें क्या उसने, क्या मेडिसिन उसने दी थी वहां पे, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी, जो एक डॉक्टर था उसकी रिकमेंडेशन क्या थी. ठीक है, सो रिकमेंडेशन भी नहीं दे पाएंगे वो तो. राइट, सो द प्रॉब्लम ऑफ इलेजिबल हैंडराइटिंग क्रिएट्स अ गैप resulting in inefficiencies and further limits the potential benefits of digital health innovations and technology which is readily available. All right, it leads to ambiguity and confusion which can in turn take on patients life or health. अभी सपोज डॉक्टर ने कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े लिख के दे भी दिया, ठीक है, केमिस्ट को अगर नहीं भी समझ में आया हो, सपोज करो कि केमिस्ट को नहीं भी समझ में आया, सो
इट कैन टेक पेशेंट्स हेल्थ और लाइफ ऑल्सो। पेशेंट की तो लाइफ गई अगर केमिस्ट ने कुछ एक गलत मेडिसिन दे दी एंड पेशेंट जो है क्रिटिकल है, सो डॉक्टर्स क्यों नहीं अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं? ऑलराइट, so these are the problems of illegible handwriting, and now legible handwriting is our fundamental right under article 21. All right, so next news, Magsaysay award. Magsaysay award, it is an important award एलेट के लिए, एनएलयू दिल्ली के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लैट में 1 और 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर, बट एक पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा, बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस साल, बट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ऑलराइट, सो मैग्सेसे अवार्ड, हु इज द विनर? एजुकेट गर्ल्स, एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इट इज फाउंडेड बाय सफीना हुसैन। सो एजुकेट गर्ल्स को, विच इज फाउंडेड बाय सफीना हुसैन, दे हैव won the Magsaysay award. All right, so from 50 villages in Rajasthan, the organization has expanded to over 30,000 villages. ये एक organization है which has the primary focus on educating the girl child. लड़कियों को पढ़ाने के लिए they have taken the initiative. Educate Girls एक NGO है which is founded by the Safina Hussain. All right, their model is simple but powerful. Train young women and men as local champions who go door to door, घर घर जाके कन्विंसिंग फैमिलीज दैट डॉटर्स बिलोंग इन क्लासरूम्स। ठीक है, अभी जो गर्ल्स की एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है, अभी भी इसमें इंडिया काफी पीछे है। ऑलराइट, सफीना's वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो आपके पास सफीना ने ये जो मैग्सेसे अवार्ड है ये विन किया है। पहले उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? देखो, सफीना's वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली मोस्ट रिसेंटली विद द वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन। पहले इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द अवार्ड। She is the first Indian woman to win the award, Wise Prize for Education. Her leadership shows what can happen when persistence, data, and community partnership come over. Girls once invisible now read, write, and dream of futures their mothers never imagined. So this is a good step. इनको मिलना भी चाहिए था इस चीज के लिए मैग्सेसे अवार्ड एंड वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन she has won. All right. सो लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। इन्होंने तो इनिशिएटिव लिया एनजीओ ने लड़कियों को पढ़ाने का, बट जो इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। द मूवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज नॉट सिविल सोसाइटीज बर्डन अलोन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज शोन सीरियस इंटेंट। पहली चीज क्या है? द राइट टू एजुकेशन एक्ट ब्रॉट नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट एट प्राइमरी लेवल। सो 2002 में आपको मैंने कराया हुई चीज, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2002, ठीक है। सो जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, 86th अमेंडमेंट से आई थी ये चीज, ठीक है। वो है एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है। देन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, इससे भी काफी इंप्रूवमेंट आई। While Kasturba Gandhi Balika Vidyalays provide residential schooling for vulnerable girls. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी हैं। स्टेट्स हैव इनोवेटेड टू, बिहार में क्या हो रहा है देखो, बाइसिकल स्कीम है फॉर स्कूल गर्ल्स, एंड यूपी में भी लैपटॉप्स बांटे गए थे। सो देयर आर वेरियस स्कीम्स, बट इंपॉर्टेंट स्कीम्स आर राइट टू एजुकेशन एक्ट, दिस इज द सेंटर स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑलराइट, एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, these are the important schemes by the government. All right, so millions of young women aged 15 and 30 dropped out years ago due to poverty, गरीबी है हमारे देश में, पेट्रियार्की है और अर्ली मैरिज। सो this was a very good initiative by Safina Hussain. All right, so this was about the Magsaysay award. ठीक है, so let's now move on to Evergrande. Evergrande, the rise and fall.
देखो लास्ट ईयर ऑल्सो, लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन FTX, देयर वाज अ कंपनी एंड वो एक बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, ठीक है। FTX पे देयर वाज अ क्वेश्चन। अभी एवरग्रैंड, दिस इज ऑल्सो कंपनी, इट वाज वंस द बिगेस्ट कंपनीज इन चाइना, इट वाज वंस द बिगेस्ट कंपनीज इन चाइना। अभी ये डीलिस्ट हो चुकी है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से। इट वाज वंस द बिगेस्ट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी थी ये, एंड अब इसको क्या कर दिया गया है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया है। एंड जल्दी हम देखेंगे ये जो लिक्विडेट भी होगी, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी, की एवरग्रैंड को लेके कंट्रोवर्सी क्या है, राइज कैसे हुई वो, एंड फॉल कैसे हुई। ऑलराइट, वी विल रीड दिस। सो ऑन August 25, shares of the property developer Evergrande, which was once one of the biggest companies in China, were delisted from the Hong Kong Stock Exchange. This is the news. Now, in 2018, Evergrande became the world's most valuable real estate company. So 2018 में देखो इसका राइज था, वो मोस्ट वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी थी ये 2018 में, एंड 2025 आते आते देखो ये डिलिस्ट हो चुकी है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से, which also had interest in wide range of other businesses. और भी बिजनेसेस में थे, बट मेनली इनका बिजनेस क्या था, रियल एस्टेट। By 2021, it had collapsed in a spectacular fashion, both the symptom of changes underway in China's economy as well as the reason for the downturn in several allied industries. 2021 से इसका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया। 2018 में देखो इट वाज राइजिंग, 2021 में इसका जो कोलैप्स इट हैड स्टार्टेड। 2025 में हांगकांग जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे डीलिस्ट भी हो चुकी है। ऑलराइट, नाउ at the time of its collapse, Evergrande had more than 1,300 incomplete projects spread across 280 cities in China. The Evergrande stock had lost almost its entire value since the crisis began. So 1300 इनके देखो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स पड़े हैं थ्रू आउट चाइना। चाइना में इन्होंने रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। देखो चाइना में भी अभी इंडिया जैसा ही हाल है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज रूरल पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। रूरल पॉपुलेशन है वहां पे, गांव बहुत ज्यादा है, एंड देर इज माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज, ठीक है, जो इंडिया में भी चल रहा है। देखो जो रूरल पॉपुलेशन है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक देम अर्बन। जैसे करनाल आप देखोगे, पानीपत आप देखोगे, सो पीपल आर मूविंग फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रही है। ऐसे ही इन चाइना ऑल्सो देर वॉज अर्बनाइजेशन in 2016, 2017 there were a lot of people that were coming from the rural areas to the urban areas, urbanization start हो रही थी। एवरग्रैंड ने उसका फायदा उठाया, उनको हाउसिंग प्रोवाइड की, एंड देयर वाज अ बूम इन द रियल एस्टेट। बूम आया 2018 में, एंड दे बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी। बट 2021 आते आते उन्होंने इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, 1300 प्रोजेक्ट्स दे स्टार्टेड एंड दे नेवर कंप्लीटेड देम। इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना एंड वो कंप्लीट ना करना, this was the reason of their downfall. All right, so what is the story of Evergrande's dizzying rise? Evergrande's story is intertwined with China's urbanization boom. The founder of the company, Hui Kaiyan, this is the name of the founder, इसको आप याद कर लेना, Hui Kaiyan, who is now 66 years old, rose from poverty to ride a once in a generation wave in the country's real estate sector. So ये नाम याद रखना आप, all right, and he was from a poor background, Hui Kaiyan, all right. The boom was driven by the massive migration from the countryside to the cities, an unprecedented demand for housing, and a policy environment that rewarded aggressive expansion. All right. According to the data from World Bank from 1960 to 1980, the share of the urban population in China, total population grew from around 16 to 20%. By 1990, it stood at 26%. By 2000, 36%, 2024, 66%. अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। 2024 तक what was the urban population? 66%. Another frequently quoted statistic is that China used more cement between 2011 and 2013 than the US did in the entire 20th century.
सो देखो 2 साल में चाइना ने इतना सीमेंट यूज किया जितना यूएस ने पूरे 20th सेंचुरी में यूज नहीं किया. दिस वाज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन चाइना. 2024 तक व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ चाइना? 66%. All right. Now, what the company did, they diversified. The company diversified into everything from healthcare to finance. Healthcare में भी चली गई ये कंपनी, and finance में भी ये कंपनी गई. Even sports, buying the Guangzhou Football Club. At its peak in 2017, Evergrande was valued at nearly 400 billion. Alright, जो डॉलर में बात करें अगर हम 51 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन थी, ठीक है, in 2017, symbolizing China's real estate driven growth model. Alright, so what is the important thing? First is this name, Hui Kai-yan. This was the founder of the company. Alright, now downfall कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए, 1300 प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड बट दे वर नेवर कंप्लीटेड. ऑलराइट, the unraveling was years in the making. The Chinese government introduced a 3 red lines policy in 2020 as an attempt to discipline over-leveraged developers by making the conditions for borrowing stricter. जो borrowing की conditions थी, जो पैसा borrow कर रहे थे ये लोग बैंक से, they were made stricter. That policy was the proximate trigger, cutting off the chief credit that Evergrande and other developers depended on. So China में जो इनको एक कंडीशंस थी, बोरोइंग ये कर रहे थे इतने सारे बैंक से, दे वर मेड स्ट्रिक्टर ऑल्सो. ओके, बट द डीपर प्रॉब्लम्स फॉर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी थी इनके पास. देखो, डिमांड फॉर हाउसिंग हैड बीन स्लोइंग एज डेमोग्राफिक्स शिफ्टेड टू एन एजिंग पॉपुलेशन. चाइना की जो पॉपुलेशन है मेनली इट इज एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े लोग हैं वहां पे ज्यादा अभी पे. ऑलराइट, सो डिमांड ऑफ हाउसिंग इट इज स्लोइंग नाउ. इतना जो बूम आया था 2017 से लेके अब तक, इतने साल जो 2011 से लेके अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, अब वो कम हो रहा है. राइट, एंड मेनी अर्बन हाउसहोल्ड्स ऑलरेडी ओन्ड मल्टीपल प्रॉपर्टीज. ओके, सो एवरग्रीन relied on perpetual pre-sales which it would use the money to immediately start developing the next project. perpetual क्या होता है? देखो, मैंने एक बिल्डिंग स्टार्ट की बनानी, परपेचुअल मैंने बिल्डिंग बनने से पहले ही वो फ्लैट्स सेल कर दिए कि दिस बिल्डिंग आई एम मेकिंग एंड इस ये जो फ्लैट्स है इसमें इस प्राइस के रहेंगे. अभी बननी स्टार्ट ही हुई है, अभी कुछ फ्लोर्स, एक दो फ्लोर्स ही बने हैं, बट आई एम सेलिंग दिस प्रॉपर्टी. अभी फ्लैट्स बने भी नहीं है, वो सेल कर दिए. ठीक है, जो पैसा उससे आया जो सेल करने से, उससे नेक्स्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दी. ऐसा नहीं है कि पहले एक बिल्डिंग फिनिश करो, जिससे पैसा लिया उसके पैसे को यूटिलाइज करो, बिल्डिंग बनाओ. उन्होंने क्या किया, परपेचुअल प्रीसेल्स पे ये जो फ्लैट्स थे बेचने स्टार्ट किए एंड नेक्स्ट बिल्डिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी. ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर देयर डाउनफॉल. इंडिया में भी होता आ रहा है, तो इंडिया में भी यही चीज है, फ्लैट्स बनते नहीं है, बिक पहले जाते हैं, है ना. सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय एवरग्रैंडे's collapse? What does the delisting of its stock indicate about its future? सो कोलैप्स हुआ है अभी, लिक्विडेशन एकदम से नहीं हो जाएगी इसकी. लिक्विडेशन जो है कोलैप्स से एकदम नहीं होगी. लिक्विडेशन इज अ डिफरेंट थिंग, delisting is a different thing. It has been 1 second. Evergrande defaulted on its offshore debt, so its chairman investigated for fraud and has been under court ordered liquidation. So कोर्ट में भी इनका केस भी चला लिक्विडेशन का. लेट्स सी आगे क्या होता है, बट दिस इज अ बिग न्यूज. एक जो ऑफ बीट टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्लैट में, तो उस चीज में इट कैन बी आस्क्ड एवरग्रैंड. ऑलराइट, सो दीज वर द करंट अफेयर्स फॉर टुडे. सो देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया इसमें. 25th SEO समिट, राइट, जो एक डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी किंगडाओ चाइना में, वो तो हो ही चुकी थी पहले. 25th SEO समिट जो हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं? टिएनजिन चाइना में. ऑलराइट, देन कम्स विपुल पंचोली कंट्रोवर्सी, व्हाट इज द कोलिजियम सिस्टम वी डिड. ऑलराइट, देन कम्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इनकी क्या कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, and how he is elected. I'll send you the PDFs also. Then legible prescription, it has been made a fundamental right. It is a fundamental right now under Article 21, life and liberty. All right, then comes Magsaysay Award, educate girls को मिला है, founded by Safina Hussain.
मैग्सेसे अवार्ड। ऑलराइट, इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मैग्सेसे अवार्ड मिलता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस एंड कब फाउंड हुआ ये। ऑलराइट, next Evergrande rise and fall. So these were the current affairs that we did today. Now we will be covering that one judgment जो हमारी लास्ट क्लास में रह गई थी, एक जजमेंट, we will be covering that also. All right, so one second. Saloni, Shaurya, Vardhan, any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so just wait 1 second. So in the last class, we did All India Judges Association versus Union of India. All right, and then we did Imran Pratapgarhi versus State of Gujarat. ठीक है, then what was left was Vihan Kumar versus State of Haryana. We also did Urmila Dikshit versus Sunil Saharan. ठीक है, now let's start with Vihan Kumar. I'm opening the judgment. So this is the judgment. Okay, so again, in the Supreme Court of India, criminal appellate jurisdiction, I told you सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction कौन कौन सी है? क्रिमिनल appellate jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट के पास, सिविल appellate jurisdiction है, एंड ओरिजिनल jurisdiction भी है. ठीक है, अपील में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, आप अपील में भी जा सकते हो, एंड यू कैन गो डायरेक्टली ऑल्सो. सो सुप्रीम कोर्ट के पास तीनों jurisdiction है. ऑलराइट, criminal appellate jurisdiction, civil appellate jurisdiction, and original jurisdiction also. So this was the case in the Supreme Court of India, criminal appellate jurisdiction, criminal appeal number, इसमें कोई नंबर नहीं गिवन है इसका, of 2025, arising out of the SLP, article 142 में mentioned है SLP. So arising out of the SLP, इसने directly approach किया है, sorry directly नहीं, it is arising out of a SLP, serial number 13320 of 2024. All right, so this is how the Supreme Court judgments are. So Vihan Kumar, he is the appellant, ठीक है, and State of Haryana, they are the respondents. So Vihan Kumar versus State of Haryana. So what is the judgment? This is listed in the landmark judgments of 2025. Supreme Court की खुद की website पे mentioned है. This becomes important for us. So the judgment was delivered by Abhay S. Oka. And I also want to clarify the Supreme Court bench जो है उसके बारे में थोड़ा clarification में देना चाहूंगा. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो बेंच है, इट कैन बी वन, हाई कोर्ट में भी इट कैन बी वन ऑल्सो, सिंगल जज बेंच उसको बोलते हैं. देन टू जज बेंच भी होती है उसमें, ठीक है, टू जज बेंच भी होती है उसमें. ओड नंबर इवन नंबर्स में बाकी कोई भी जज बेंच नहीं होती, सिर्फ टू जज बेंच होगी. ठीक है, अगर टू जज बेंच में ऐसा होगा कि एक ने जो फेवर में कुछ जजमेंट दी है, एक ने डिसेंट किया है, देन इट विल गो टू थ्री जज बेंच. बट the bench can be of single judge, can be of double bench, two judge bench भी हो सकती है, three judge bench. आगे जो भी होगी it will be odd number, 1 3 5 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, but two judge bench is also there. ठीक है, तो सिंगल जज भी हो सकती है, डबल बेंच भी हो सकती है, दो जज भी हो सकते हैं. देन इट विल मूव ऑन टू odd number of judges, 3 5 7 9. ऑलराइट,
सो ये किसने दी है देखो जजमेंट, अभय एस ओका जे, इज द सुप्रीम कोर्ट जज अभय एस ओका, सिंगल जज बेंच की ये एक जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जब भी जजमेंट दी जाएगी आपको याद रखना होगा, इट विल बी गिवन बाय मिनिमम 5 जज बेंच, कम से कम 5 जजेस होंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में प्रोसीडिंग कैन गो ऑन, ऑलराइट। एंड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो भी पूछा गया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो मांगा गया है टू द सुप्रीम कोर्ट, वो भी कितने जजेस सुनेंगे, 5 जज बेंच, ठीक है। उसमें मिनिमम 5 जज बेंच विल बी देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, एंड व्हेन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी 5 जज बेंच विल बी देयर, ऑलराइट। So let's look at the issues involved. Amongst other issues, the main issue conveyed by the appellant in this appeal is the violation of the appellant's right under Article 22(1) of the Constitution of India, as the appellant was not informed of the ground of his arrest. So Article 22(1) में हमारा राइट है सिटीजन्स का टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ आर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी भी सिटीजन को कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, ही शुड बी वियरिंग विजिबल मार्क, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्टार्स मेंशन होंगे कि किस रैंक से पुलिस वाला है, ऑलराइट। किसी को अगर किसी घर से किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो अ फैमिली मेंबर विल बी इन्फॉर्म्ड। सर्वेंट को इन्फॉर्म करना इज नॉट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सर्वेंट को इन्फॉर्म करना नहीं चलेगा, फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना होता है। फैमिली मेंबर अगर कोई नहीं प्रेजेंट है बट किसी को अरेस्ट करना है, देन किसी नेबर को इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड ऑल्सो द एपेलेंट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। जब भी किसी को अरेस्ट करेगी पुलिस, उसको बताएगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स वी आर अरेस्टिंग यू। इन विहान कुमार केस दिस राइट वाज वायलेटेड, उनको बताया नहीं गया कि आप किस लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द एपेलेंट ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस थिंग, ओके। सो फैक्चुअल आस्पेक्ट मींस व्हाट आर द फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं एक जजमेंट में, ऑलराइट, देन कंक्लूजन होता है, ऑलराइट। सो व्हाट आर द फैक्ट्स, फैक्ट मींस हुआ क्या इस केस में बेसिकली। A reference to a few factual aspects would be necessary. The challenge in this appeal is to the judgment and order dated 30th August 2024 passed by the learned single judge of Punjab and Haryana High Court. The appellant was arrested in connection with the FIR number 121 of 2023. इनको अरेस्ट किया गया, ऑलराइट। इनके ऊपर जो ऑफेंसेस थे 409, 420, 467, 468 एंड 471 एंड 120B, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शंस आपको याद नहीं रखने हैं, बहुत सारे इन पे एलिगेशंस थे, उसके लिए इनको अरेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द एपेलेंट्स केस, ही वाज अरेस्टेड ऑन 10th June एट अबाउट 10:30 AM। सुबह सुबह इनको अरेस्ट कर लिया गया एट हिज ऑफिस प्रीमिसेस, इनके ऑफिस से इनको अरेस्ट किया गया। ही वाज टेकन टू DLF पुलिस स्टेशन, गुड़गांव में इनको लेकर जाया गया। ही वाज एलिजिबली produced before the learned magistrate at Gurgaon on 11th June at 3:30 PM. Therefore, there was a violation of Article 22, Clause 2 of the Constitution and Section 57 of the CRPC. All right. The order dated 11th June 2024 passed by the learned magistrate was the time of arrest mentioned. So उन्होंने देखो दो चीज बोली कि 24 आवर्स तक आप किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते, तो ठीक है, द CRPC एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि विद इन 24 आवर्स अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो भी होगा उसको उसके पास प्रोड्यूस करना होगा। एंड व्हेन द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उनके बताने होंगे कि आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आओ चलो आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, आप चलो पुलिस स्टेशन, आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ही शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट आर द एलिगेशंस, मेरे ऊपर इल्जाम क्या क्या है, ऑलराइट। सो दो एलिगेशंस देखो इन्होंने, जो जो एक एपेलेंट है विहान कुमार, उन्होंने क्या क्या बोला है कि लर्न जो मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया गया, इट वाज आफ्टर 24 आवर्स दैट गाइडलाइन वाज वायलेटेड, एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट as I was not told what the allegations on me were. Okay, so there is another very serious factual aspect. The order dated 4th October 2024 passed by this court records that after the appellant was arrested, he was hospitalized in PGI Rohtak. जो PGI Rohtak में he was taken. The learned counsel appearing for the appellant produced photographs
which showed that while he was admitted to the hospital, he was handcuffed and chained to the hospital bed. So इतना न्यूज में क्यों है ये केस? इनके जो एडवोकेट थे, ठीक, उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया इस चीज में। उन्होंने क्या किया, इनके जो एडवोकेट थे उन्होंने फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली। जो पुलिस थी, हरियाणा पुलिस आपको पता ही है कितनी अच्छी है ना। सो हरियाणा पुलिस ने क्या किया, जब इनको पीजीआई रोहतक लेके जाया गया, ही वाज हैंडकफ्ड टू द बेड। बेड पे इनकी हैंडकफिंग कर दी। हैंडकफ ऐसे नॉर्मल केसेस में नहीं कर सकते, एंड ही वाज चेन्ड आल्सो। हैंडकफ लगाने के बाद भी ही वाज चेन्ड, सो दिस वाज इनह्यूमेन। ऑलराइट, ही वाज चेन्ड, सो दैट्स व्हाई दिस केस गेन्ड नेशनल अटेंशन आल्सो, कि चेन कर रखा है किसी एक जो पेशेंट है, ऑल्दो ही इज अ accused, बट ही इज अ पेशेंट आल्सो, उनको चेन किया हुआ है। So he was chained to the hospital bed. Therefore, a notice was issued on 4th October 2024 to the medical superintendent of PGI, calling upon him to file an affidavit stating whether the appellant was handcuffed and chained to the hospital bed. So उनसे भी एक नोटिस, उनको नोटिस दिया गया, किसको? मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द पीजीआई। क्या बताओ कि whether this is true or not, जो एडवोकेट ने फोटोज दिखाई हैं। So he also confirmed कि yes, he was handcuffed and he was chained to the hospital bed. All right. So let's now look at the submissions. एपिलेंट के बिहाफ से, विहान कुमार के बिहाफ से कौन केस लड़ रहे? देखो, श्री कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल was there, appearing on the behalf of the appellant, invited attention to the averments made in the writ petition filed before the High Court, and particularly the grounds therein. He pointed out that the grounds A and B contains a specific averment that the appellant was not informed about the grounds of arrest. So Mr. Kapil Sibal, आप भी एडवोकेट बनोगे तो आप भी ये देख सकते हो जजमेंट्स कैसे होती हैं, एंड व्हाट आर द अवर्मेंट्स। कपिल सिब्बल ने वैसे वहां पे कैसे आर्ग्यू किया? So he said कि he was not informed about the grounds of arrest or reasons for the arrest, and hence there was a violation of section 50 of the CRPC. Further, article 22(1) has also been violated. So article 22(1) violate हुआ, section 50 violate हुआ, and he asked कि जो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट जो है, he should be he should get bail. बेल की उन्होंने डिमांड रखी है, ठीक है। He pointed out that the only pleading was that appellant wife was informed about the arrest. Therefore, London Council, by relying upon the decision, कुछ उन्होंने decisions mention किए जो पहले decisions आ चुके हैं। All right. What else? He asked Mr. Kapil Sibal, the arrest of appellant is rendered illegal. He also urged that there was a violation of Article 22, Clause 2 of the Constitution. Therefore, he must be forthwith set at liberty. So देखो, पुलिस अपनी चलाती है हर टाइम, ठीक है, बट if the person he goes to Supreme Court, he goes to High Court, he will be heard. But this is the condition of police in our state. All right. Now let's come to, now the Supreme Court, they have discussed कि कौन-कौन से procedures they should be followed for arresting a person without warrant. Cognizable, non-cognizable cases we have done, right? Cognizable cases में a person can be arrested without warrant, and non-cognizable cases में a person cannot be arrested without a warrant by the police. All right. So Supreme Court ने देखो sections discuss किए, section 41 discuss किया, then section 41 is the main section जो कि arrest and detention के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Then comes, yes, this was discussed, and then Article 22 was discussed, जिसके बारे में हमने बात की, protection against arrest and detention in certain cases, ठीक है, इसके बारे में बात हुई। The provision, specific provisions के ground of arrest बताने पड़ेंगे हमें, those were discussed. All right. Now let's come to, yes, this section 50 was discussed. All right. Now let's come to the conclusion. देखो, सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या बोला इसमें, we have no hesitation in reiterating that the requirement to communicate the grounds of arrest or the ground of detention in writing
to a person arrested in connection with an offense or a person placed under preventive detention as provided under Article 22(1) and 22(5) of the Constitution is sacrosanct and cannot be breached in any situation. किसी भी situation में they cannot be breached. Non-compliance of this constitutional requirement and statutory mandate would lead to the custody or the detention being rendered illegal as the case may be. So देखो सिर्फ एक जो एक रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं हुई कि आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बताना, द डिटेंशन विल बी रेंडर्ड इलीगल. सो क्लैट में अगर आपके पास क्वेश्चन आया विद रिगार्ड टू लीगल रीजनिंग में सपोज इट हैज बीन गिवन कि अरेस्ट किया गया बट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दे वर नॉट गिवन. सो द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, वहां भी आपको मिलेगी वैसे रूलिंग, बताया जाएगा आपको कि दिस इज द पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. सो यस, अगर नहीं बताई गई हैं कंडीशंस जो that what are the why you have been arrested, grounds of arrest नहीं बताए गए हैं, so उससे क्या होगा, detention will be rendered illegal. All right, now let's move on to the judgment. The court has provided its reasoning also. Now the conclusion. The conclusion is there. The requirement of informing a person arrested of ground of arrest is a mandatory requirement of Article 22(1). This is what the Supreme Court is saying. All right. Now the factual adjudication. Judgment क्या है इस पे? Now the state of Haryana, they have been there is a direction by the Supreme Court now that the state of Haryana shall issue guidelines, departmental instruction to the police to ensure that the act of handcuffing as an accused while he is on his hospital bed and tying him to the hospital bed is not committed again. दोबारा ऐसा ना हो. To ensure that the constitutional safeguards under Article 22 are strictly followed. अगर नहीं फॉलो करोगे तो द रेस्ट विल बी रेंडर्ड इलीगल. इस केस में क्या हुआ, विहान कुमार के केस में ही वाज सेट फ्री. ठीक है, देखो केस तो उनके ऊपर चल रहा है बट ही वाज गिवन बेल उनको मिल गई थी. ठीक है, केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का, केस विल गो ऑन बट बेल उनको मिल गई है इस चीज में. ऑलराइट, ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स. ठीक है, बाकी इन्होंने वही बात की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है ये सब चीजें. सो नेक्स्ट टाइम जो भी अरेस्ट होंगे, जो भी डिटेंशन होगी, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 22 एंड सेक्शंस जो भी सीआरपीसी के होंगे. सो दिस वाज द जजमेंट. ऑलराइट, by Justice Abhay S. Oka. All right. So Saloni, Shore, any doubts? No, sir. कोई भी डाउट नहीं है इसमें? आ गया? Yes, sir. कोई तो डाउट होगा बेटा, कुछ तो पूछो.